is as well. So yeah, I'm an NLP Neuro Linguistic Programming Master Practitioner and Master Coach, Life Coach. एंड यहाँ पे जो चीज़ एक नई लिखी हुई दैट इज टाइमलाइन थेरेपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट along with that basically my education is MPhil in English. सही हो गया. And then what field I chose after becoming this, after becoming a mind management master coach, that I can manage my mind and I am managing other people's minds. What is the field where I can feel the most at peace बाय सर्विंग अदर्स? क्योंकि जिसमें मैंने स्ट्रगल किया था दैट वाज मदरहुड. जिसने मुझे डेवस्टेट कर दिया था दैट वाज मदरहुड. Because this was such a confusing place to be while you love your children so crazily and madly, and you are the one many times जो उनकी विलन बनी हुई है, उन पे चीख रही है, उनको डांट रही है और समझ नहीं पा रही, और हर वक्त अपने आप को बुरी माँ भी कह रही है और अपने बच्चों को भी बुरे बच्चे कह रही है, क्योंकि सोच रही है कि कंपैरिजन करो कि वो बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं. So this was where I struggled a lot, and when I came, it comes to the understanding of when it came to the understanding of learning the mind patterns through neuro-linguistic programming, तो मुझे पता चला it was in my head. The problem was in my head. The solution was in my head. I was just not approaching it. So by approaching it, मुझे जिंदगी ने इतना सुकून और खुशी दी कि मैंने अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पेरेंटिंग के नाम करने का सोचा. इट वॉज अ टफ डिसीजन. एट फर्स्ट आई थॉट कि आई एम नॉट दैट परफेक्ट मदर जिस तरह होती हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं. ये ऐसे कहती हैं, मैं तो नहीं कर रही है सब कुछ. आई एम डूइंग मैनी थिंग्स रॉन्ग. बट एट द सेम टाइम दिस कॉन्सेप्ट गेव मी कॉन्फिडेंस. वॉट इफ आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम बीइंग ऑथेंटिक, आई एम कमिंग बैक एवरी डे. जहां गलती हो रही है मैं दोबारा सही जगह पे आ रही हूँ. आई एम फिक्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम हीलिंग माई सेल्फ एज वेल एज माई वुंडेड चिल्ड्रन, बिकॉज इससे पहले मैं अपने बच्चों को काफी वुंड कर चुकी थी because of I was wounded. So I came to parenting and then emotional management as a whole. Uh, Initially for mothers and women, and then yes, fathers and men as well. So am I good with this introduction? Should we move on? So I'll try my best to cover the whole topic. I usually try to cover in 1 hour, but it can be 1 hour plus somehow. So I request you to bear with me. Next slide. नजर आ रही है? कैन यू सी क्या चल रहा है इन क्वेश्चंस का? क्या आप ये हैं? रेज योर हैंड इफ यू आर दिस पेरेंट. I love my child, but I don't like how I sometimes respond. I understand parenting intellectually. This is 100% me. But I struggle in the moment. This was me, and sometimes this is me. I struggle in the moment. In the moment का क्या मतलब है? When I am triggered, when I'm overwhelmed, when I'm carrying the invisible load onto my shoulders and nerves, and unloading myself only on my children. I want boundaries without constant battles. Are you this mother or are you this parent? Still, so far मुझे कुछ रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि फादर आए हुए हैं या नहीं. वैसे बहुत शिकायत करते रहते हैं कि आप मदर्स का करती हैं. Whenever I announce कि भी आप भी आ जाएं तो they don't come. So I want my child to stay connected to me and to the values I want to give them. ये ना सबसे बर्निंग टॉपिक है आजकल के 10+ बच्चों के वालिदैन का जो मेरे पास आते हैं. वो बच्चों को वैल्यूज देना चाह रहे हैं, अपने से भी कनेक्शन चाहते हैं, इस्लाम से भी चाहते हैं, बट हो ये रहा है कि उनको नहीं मिल रहा. And I don't want to repeat patterns I grew up with. How many are going to go with this part only? First of all, छोटे बच्चों की माएं, hello, hi. I don't want to repeat patterns I grew up with. बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस पैटर्न से बड़ी हुई, मैंने जो कुछ किया, मेरे साथ जो हुआ बुरा लगा, फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ वही कर रही हूँ. आर यू विद मी विद इन दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी इन दिस? मेरे साथ जो हुआ बुरा लगा, लेकिन अब मैं भी वही कर रही हूँ. हाउ मेनी पीपल, प्लीज शो मी योर येलो थम्स अप. हम्म.
Okay then. And how many of you are here who were actually there in my previous webinar as well, जिसमें मैंने कंट्रोल की जंग की बात की थी? क्या कुछ ऐसे लोग हैं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज मैंने इसको उससे कनेक्ट करना है थोड़ा सा. कंट्रोल की जंग वॉज द टॉपिक and it was really appreciated. I uploaded it on YouTube as well, and many people, came around and around and around again after listening to that webinar from YouTube. And it was the topic was actually कंट्रोल की जंग. वो ज्यादातर छोटे बच्चों का मैटर था, जिसमें बच्चा बात नहीं मानता और बड़ा जो है. कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने वो अटेंड किया था, या सब नए हैं? अगर सब नए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मजे की बात है. सो नेक्स्ट स्लाइड. कंट्रोल लूप. व्हेन यू आस्क योर चाइल्ड टू डू what you ask. See, when you tell your child or command your child कि मैं जो कह रही हूँ वही करना है आपने, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा. द प्रॉब्लम इज बच्चे बात नहीं सुनते. हाउ मेनी ऑफ यू आर डू कम विद दिस प्रॉब्लम? बच्चे बात नहीं सुनते. मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा बदतमीजी बहुत करता है, चीजें गिरा देता है, छोटे बच्चों को मारता है. इतने जब से मेरे पे इनबॉक्सेस आने शुरू हुए ना इंस्टाग्राम पे रैंडम मदर्स के, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. 90 आउट ऑफ 90 में से जो माँ को ये मसले हैं. 3.5 ईयर्स का बच्चा है. लिसन टू मी. वो ना अपने छोटे बहन भाई को बहुत मारता है, बड़ों वाली कोई बात ही नहीं है उसमें. सीरियसली ये जुमला लिखा हुआ था. मेरा तो दिल टूट जाता है. 3.5 ईयर्स का बच्चा, उसमें बड़ों वाली कोई बात ही नहीं है. कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कंट्रोल लूप. एक लूप है जिसमें पेरेंट्स फंस जाते हैं. होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है? पेरेंट वांट्स चाइल्ड टू कंप्लाई. बात मानो, मेरी बात मानो. अब उसको कहा कैसे जाता है? कंट्रोलिंग सेंटेंसेस बोल के. मैंने कहा है, जब तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई. मैंने तुम्हें क्या कहा है? डिड आई नॉट टेल यू टू डू दिस? तुम बात क्यों नहीं मानते हो? जल्दी से मेरी बात मान लो. नाउ द चाइल्ड नर्वस सिस्टम, उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई भी कि वो आपकी इंस्टेंट फियर ड्रिवन इंस्ट्रक्शंस को कैटर कर सके इफ द चाइल्ड इज टू यंग. ये कंट्रोल लूप हर एज में चलता है. आई टेल यू, टीच यू. बट छोटे बच्चों के साथ ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट इज लाइक दिस, कि फियर के सिनेरियो में वो ज्यादातर हैंग हो जाता है. वो अटेंशन को ग्रैब करके अपनी इस स्टेट से अगली स्टेट पे नहीं जा पाता. तो वो एक लम्हे के लिए रेजिस्ट करता है, करता ही करता है. और वो भी उस वक्त कंट्रोल ही चाह रहा होता है. जो कंट्रोल आप उससे छीन रही हैं, थोड़ा सा वो वापस लेना चाह रहा है, सो वो रेजिस्ट कर रहा है. अब क्या हुआ जब उसने रेजिस्ट किया? तो पेरेंट इंक्रीजेस कंट्रोल. हम तो चाहते भी अनजस्टिफाइड या अनक्वेश्चनड ओबीडियंस है ना, छोटे से बच्चे से भी. मैंने कहा मेरी बात, तो बस तुम्हें मेरी बात माननी है. मैं कहूँ खड़े हो जाओ, तो सारा सारी रात खड़े रहो. फजल पाओगे बहुत ज्यादा. इस तरीके की बातें करके ना, ब्लैकमेल करके, वी मैनिपुलेट चिल्ड्रन कि हमारी बात सुनो और मानो. और कंट्रोल बढ़ जाता है यहाँ से, क्योंकि बच्चे ने रेजिस्ट किया. तो अब मेरा जो है ना, मेरी ऑटोनॉमी चैलेंज होने लग गई है. अथॉरिटी, बीइंग अ मदर, मैं बहुत अथॉरिटेटिव हूँ. मेरी बात बच्चे को माननी थी. इसने कैसे कहा नहीं, या इसने बात मानी क्यों नहीं, इसने वही क्यों किया जो ये कर रहा था. मैंने कंट्रोल इंक्रीज कर दिया. तो बच्चे ने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी, क्योंकि अब क्या चल रहा है? ये कंट्रोल की जंग चल रही है. मेरा कंट्रोल, मेरा कंट्रोल. तो वो रिलेशनशिप कहाँ गया? कंपेनियनशिप कहाँ गई? गाइडेंस कहाँ गई? कनेक्शन कहाँ गया? इतने बड़े एम्प्टी स्पेस में से ये सब कुछ निकल गया, क्योंकि उसमें कंट्रोल भर गया तो ये सब कुछ निकल गया. और उसके बाद पेरेंट्स जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि अब इस पॉइंट पे जो है ना ये होएगा, या तो सीधी, या फिर चीहो पुकार, या फिर तानो तशनी. जो माएं देती हैं बड़ी एक्सपर्ट होती हैं इस मामले में, और वो ऐसे ऐसे भिगो के तीर मारती हैं कि बच्चा बेचारा तड़प के रह जाए. दिस इज एंड डैड्स इन सम अदर वे स्टार्ट थ्रेटनिंग. एंड उनका तो थ्रेटनिंग भी इतनी खौफनाक होती है कि मजीद. अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद आपको अफसोस भी हो जाएगा. कनेक्शन बिल्ड करना है आपने इस लूप को ब्रेक करने के लिए. दिस वॉज समथिंग फ्रॉम द प्रीवियस. आप अभी भी मेरे यूट्यूब पे मौजूद है. अब इसको मजीद सीखना और जानना चाहें तो आप उस पर जा सकते हैं. आज आई एम कमिंग विद समथिंग डिफरेंट. इट्स अबाउट अबाउट कंट्रोल, आई नो, बट इट्स सब एंगल इज डिफरेंट. इसको मैं कहूंगी, अभी आ जाएगा आपके सामने. इमोशनल ट्रैप. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इमोशनल ट्रैप? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि 70% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द हेड ऑफ द मदर और ऑफ द पेरेंट फिगर. पेरेंट 80% ऑफ द थिंग्स. मुझे इससे भी ज्यादा कहने को दिल चाहता है. 90% ऑफ द मैटर.
इज गोइंग इन द हेड। वो इमोशंस जो मेरे हैं वो मेरे हैं, और उधर कुछ हो रहा है, लेकिन वो ट्रांसलेट कैसे हो रहा है मैटर सारा? Because the least important thing supposedly becomes the most important thing. The least important thing, what is the least important thing in parenting? Loud and clear caps में लिखूंगी, child's behavior. Anyone have to disagree? Thumbs down दिखाएं मुझे। मैंने कहा least important thing is child's behavior, but we consider it the most important thing, do we? So what actually is important? आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर तो लाउड एंड क्लियर ऑडिटरी रिस्पॉन्स दे सकते हैं मेरी बातों का, मुझे आवाज ना आए बेशक। एक जुमला है जो आपने कम से कम 5 या 10 दफा बोलना है। रुक रुक के जरा मैं लिखती हूँ। आई, स्पेस ज्यादा दे रही हूँ, एम, उसके बाद मैं आगे चलूंगी क्योंकि ये बड़ा जरूरी प्रोटोकॉल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी हुई है इस टॉपिक की। फॉर माई ओन इमोशंस, ट्रिगर्स, रिएक्शंस। ये जरा बोलें 10 दफा मेरे साथ साथ। I am responsible for my own emotions, triggers, reactions. Good. I am responsible for my own emotions, triggers, reactions. I am responsible for my own emotions, triggers, reactions. Hope the sentence has started absorbing in your soul, in your mind. आपके इमोशनल लेवल पे जो हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अब मेरा अगला जुमला सुने। डिस्क्लेमर, अ चाइल्ड इज नेवर, नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू हैप्पी, एक्साइटेड, सैड, फ्रस्ट्रेटेड। आर यू विद मी? अ चाइल्ड इज नेवर, never responsible for making you happy, excited, sad, frustrated. Anything that comes from the behavior, वो बिहेवियर से नहीं आ रहा, वो आपके दिमाग से आ रहा है, आपकी तरफ से आ रहा है। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। हो क्या रहा है दरअसल, सबको क्या नजर आ रहा है स्लाइड पे? चैट में बताएं। इमोशनल ट्रैप की का इमेज नजर आ रहा है ना? इज द फॉन्ट साइज ओके? चैट में बता दें या येलो थम्स अप कर दें। इमोशनल ट्रैप की स्लाइड नजर आ रही है? ओके। सो इमोशनल ट्रैप जिसमें पेरेंट्स फंस जाते हैं, एक है कंट्रोल का लूप, उसमें भी हम फंस जाते हैं। वो क्या है? अब इमोशंस है। मैंने आपसे कहा आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जुमले से, आपके आपके खुद के ये जुमले बोलने से आपके अंदर ये जुमला काफी अब्जॉर्ब हो गया होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। इमोशंस कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बिहेवियर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस इन पेरेंटिंग। अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर। सो ये है बिहेवियर, ये है व्हाट आई फील इन रिस्पॉन्स, और ये है हिडन ट्रूथ। बिहेवियर क्या है? एक बच्चा है जिसको मैंने कुछ कहा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ट्रिगर वार्निंग, टून टून टून, दिमाग में बत्ती बजने लग गई। क्या? आई फील, ये छोटा सा मैंने लिखा है, आई फील। यू फील व्हाट? डिसरिस्पेक्टेड। डिड योर चाइल्ड डिसरिस्पेक्ट यू इज येट टू बी प्रूव्ड, बट यू फेल्ट disrespected. It's very common. Does a 3 4 5 years old child has the authority and power to disrespect you, to demean your respect? A child is just being. बच्चा is being बच्चा.
ये जुमला मैं अपने हर वेबिनार में बोल रही हूँ, आजकल रिकॉर्डिंग्स में भी बोल रही हूँ। बच्चा इज बीइंग बच्चा। अभी छोटे बच्चों की बात हो रही है, ये हर एज में चलता है। एनी एज, इफ अ चाइल्ड इज डूइंग समथिंग दैट इज, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहने लगी कि चुप कर रहा करने दो, क्योंकि अगले सवाल ये आते हैं। यू नीड टू रीडायरेक्ट अ बिहेवियर जो वहां से आ रहा है। यू नीड टू फोकस, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। यू नीड टू रीडायरेक्ट। मैं आपको ये नहीं कह रही यू नीड टू करेक्ट, you need to teach, you need to educate. No, 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 no. You need to redirect the behavior that is not acceptable. उसको कैसे रिडायरेक्ट करना है, पहले अपनी फीलिंग्स को उससे डिसोसिएट करें। बच्चा आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है हिडन ट्रूथ वहां पे क्या है, माई चाइल्ड में बी इन हिज ओन वर्ल्ड ओवरवेल्म्ड और सीकिंग ऑटोनॉमी। उसकी नियत नहीं है आपको डिसरिस्पेक्ट करने की, लेकिन हम 3 साल के बच्चे को भी कहते हैं तुमने बात नहीं मानी ना तो तुमने बदतमीजी की है। बदतमीजी होती है, ये गंदी बात होती है, बड़े बच्चों बड़ों की बात मानते हैं। रेजिस्टेंस हो रही है उनके अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में जितना आप, बच्चा वैसे ही अनकॉन्शियस कैपेसिटी में ग्रो कर रहा होता है, 5-6 साल का बच्चा। जितना आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होता है। इसकी बजाय आप थोड़ा सा उस चीज को एक्सेप्ट करें कि आई समथिंग दैट आई एम फीलिंग, नॉट नेसेसरीली कमिंग फ्रॉम the behavior, coming from my own analysis, coming from my own model of communication in my head. So बच्चा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा doesn't study. Now see, I feel afraid for his future. Afraid, बच्चे को कह रही हूँ पढ़ो, वो पढ़ ही नहीं रहा। अब मैं फील कर रही हूँ अफ्रेड, तो ये मेरा मसला है ना। फियर इज माई इमोशन, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह आपके सोल में उतरा होगा। फियर इज योर्स, यू नो, हैव इट, कोई मसला नहीं है। उसको बुरा ना कहें, उसको रिजेक्ट ना करें। हैव द फियर, बट डील विद योर फियर ना। डोंट डील विद द चाइल्ड। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं इस बात के जवाब में। अम, एक मसला है ना, एक मसला है, बच्चे का एक मसला है। वालदैन या हमारा मुआशरा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि मसला, मसला क्या है? बच्चा पढ़ नहीं रहा। सो मसला इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, टू द पॉइंट कि आपको उसको हल करने के लिए कुछ गलत करना है। गलत क्या होता है? आपको लग रहा है नहीं वो ठीक है, चपेड़ मारो, खड़ा कर दो, सजा दो, पढ़ लेगा। जाहिर है पढ़ लेगा, मकसद तो हासिल हो जाएगा आपका। बट इज दिस राइट? आजकल की जो सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग और हमारे पुराने पैटर्न्स है ना, वो इस तरह टकरा रहे हैं कि मुझे पता भी है कि मारना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे सही हल भी नहीं पता। तो भाई ये नहीं है कि वो मसला तो ठीक था और हल गलत है। नहीं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वो मसला ही गलत था जो आपने फिगर आउट किया। वो मसला ही मसला नहीं था कि वो नहीं पढ़ रहा। पढ़ रहा इज द मैनिफेस्टेशन और प्रोजेक्शन ऑफ हिज असल मसला। आर यू विद मी? चैट बॉक्स पे लिखें एग्री और डिसएग्री जो मैं कह रही हूँ। विद दिमाग साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरी वाली इन्फॉर्मेशन के साथ? मसला wasn't बच्चा पढ़ नहीं रहा। मसला कैन बी बच्चा इज फीलिंग डिस्करेज्ड, डिस्कनेक्टेड, बच्चा इज ओवरवेल्म्ड, बच्चा हैज सम प्रेशर एंड बोर्डम एसोसिएटेड टू स्टडीज, बच्चा हैज अ लॉट ऑफ फियर्स एसोसिएटेड टू स्टडी, जो हमारे सिस्टम में होता है। दे कैन बी द प्रॉब्लम्स, कम अप विद द सॉल्यूशन। हो सकता है कि मैनिफेस्टिंग प्रोजेक्टिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन की तरह दिखने लगे। थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमारे वालिदैन नहीं करना चाहते। वो एक टिकाई चपेड़ मसला, उसी वक्त वो मसला जिसको आप मसला समझ रहे थे, हल हो गया। समझ आ रही है बात की? सो इट वॉजंट द मसला डजंट स्टडी, इट वॉज जस्ट अ बिहेवियर। बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। ये भी याद रखें, मैंने कहा बिहेवियर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, बट इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू से दैट दिस इज अ कम्युनिकेशन। आपके पास एक मैसेज आया है, उसका जवाब दें। सो नेक्स्ट इज टॉक्स बैक। ये इससे थोड़े से बड़े बच्चे करते हैं। 12 साल के बच्चे के बाद बस अब जबान लग जाती है, और 13, 14, 15 के बच्चे तो आय हाय हाय। सो मैं क्या फील कर रही हूँ? चैलेंज्ड, मेरी अथॉरिटी चैलेंज होगी। ऐसी तैसे ये मेरा बच्चा मुझे ऐसे जवाब देगा, ऐसे दरवाजा फीट के अंदर गई है, इसकी मैं दिमाग को मैं आज दुरुस्त करती हूँ। ये कौन सा तरीका था बात करने का? हुआ क्या है? क्योंकि मेरी अथॉरिटी बहुत बुरी तरह से चैलेंज हुई है, मैंने फील की है। उसने शायद इंटेंशनल लेवल पे कुछ भी नहीं किया, कुछ तो किया है उसने, ऐसा बिहेवियर जिसको मुझे रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट करना है, थोड़ा सा ज्यादा भी किया जा सकता है। करेक्शन का लफ्ज थोड़ा सा ओवर इम्पोजिंग है, मैं नहीं यूज करना चाहती हूँ, फिर भी आप कभी कभी कर सकते हैं। बट करेक्शन से पहले आप कनेक्शन करें, गाइड करें भी, इसके ऊपर भी आऊंगी मैं आगे। सो हो क्या रहा है? माई चाइल्ड में बी ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन टेस्टिंग हिज इंडिपेंडेंस। मैं भी तो उसका कुछ चैलेंज कर रही हूँ ना।
12 13 14 साल का बच्चा थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहता है, ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन की दुनिया में आए हुए हैं, ये अभी दुनिया में आए हैं, इन्होंने अभी दुनिया देखी है, वो थोड़े से बेचारे अथले हो गए हैं कि कितनी दुनिया इज लाइक दिस, एंड माय मामा इज एन ओल्ड वर्जन. सो समटाइम्स दे टॉक बैक जस्ट टू शो, जस्ट टू एक्सप्रेस दैट आई एम फीलिंग द सेम दैट आई एम मेकिंग यू फील. This is the formula. I am feeling the same that I am making you feel. If you feel something coming, negative emotion coming from the child, check whether the child has just received the same feeling from your behavior. So that is the feeling, is emotion is being reciprocated. Now next is crying, is again for the baby chota, thoda sa bada, 2 3 years. I feel helpless. The child is crying, 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 crying. Now I feel that crying is something wrong. I can just snap the behavior so that it will end. Of course, maximum time जब हम चुप खामोश आवाज बंद, बच्चा कर भी लेता है. But this is kind of fatal for their emotional regulation skills later in life if we stop them from crying. So my child may be overwhelmed, frustrated, or unable to express. That child is a child. उसका ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ. यही चीज है जिसको मैंने पूरे मॉड्यूल में सिखाना है आईसीपीसी का, जिसकी बात होगी इंशाल्लाह अभी लास्ट 15 मिनट्स में, कि ब्रेन डेवलपमेंट की कैपेसिटी कितनी थी अभी. एमिगडाला, इमोशनल ब्रेन इज फुली एक्टिव. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज लॉजिकल ब्रेन, इज स्टिल नॉट मेड इवन एक्टिव, तो छोड़े बना ही नहीं हुआ. जो ये काम करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है, जो बात समझाता है, जो लॉजिक की बात करता है, वो बस है ही नहीं. और मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह वही करे. सो जब मैं उसको सप्रेस करती हूँ इमोशन को, तो इट अपीयर्स लेटर इन लाइफ, द साइंस अपीयर लेटर इन लाइफ ऑफ द डिसरेगुलेशन. हैज अ टेंट्रम, बच्चा टेंट्रम शो करे, ऑफ कोर्स आपको ग्रोसरी सेंटर में बच्चा जमीन पे लेट जाए, ग्रोसरी स्टोर में बच्चा जमीन पे लेट जाएगा, चीजें गिराएगा. दीज आर द टेंट्रम्स, नॉट एक्सेप्टेबल आई नो. और नॉट वेरी मजे की चीज कि मैं कहूँ कि कोई बात नहीं, बेबी स्वीट बच्चा कर रहा है ये सब. ऑफ कोर्स एम्बेरसमेंट होगी, बट इतना तो समझ जाए ना कि आप एम्बेरस फील कर रहे हैं. फीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर इन एन इमोशनल ट्रैप. अब बच्चा इज डिसरेगुलेटेड, टेंट्रम्स शो करने का मतलब है बच्चा इज डिसरेगुलेटेड. बच्चा नीड्स हेल्प, बच्चा जजमेंट नहीं चाहता इस टाइम. सो अब अगली बात, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है बट दिस इज आई शुड, आई वांट टू रीड इट अलाउड. आवर इमोशंस आर रियल, वो भी कुछ गलत नहीं है. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर इमोशंस. बट इफ यू डोंट बिकम अवेयर ऑफ देम, हम उनको इग्नोर करेंगे कि नो ये मेरे इमोशंस का मसला नहीं है, ये इसी का मसला है, ये जब ऐसे करता है तो मुझे ऐसे होता है. सो मैं क्या कॉज एंड इफेक्ट में किसको कॉज दे रही हूँ और कहाँ पे मैं इफेक्ट पे आई जा रही हूँ. क्योंकि ये ऐसे करता है तो मैं ऐसे, तो इस बेचारे की नीयत भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कुछ कर रहा है. नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज एक्शंस मेनी टाइम्स. सो मुझे लग रहा है कि मेरी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर है. नहीं है, हम पर, खुद पर है. अवेयर हो जाए ना इमोशन से, सीख ले इमोशंस को नेम करना. सो वी एंड अप रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ पेरेंटिंग. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग द पेरेंट योर चाइल्ड एक्चुअली नीड्स. ये वाला पेरेंट है जो आपका बच्चा चाहता है. अगर किसी को साइड बाय साइड क्वेश्चन में आ भी रही हो तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, बिकॉज आई एम मूविंग क्विकली. थोड़ा सा वेबिनार्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता. सो शिफ्ट इज हियर. तो मेक द बिहेवियर, कंसिडर द बिहेवियर एज कम्युनिकेशन. From how do I make my child behave to what is my child trying to communicate. ये आपका एनालिसिस एरिया होना चाहिए कि मैं आपको यहाँ से ये वाली वैल्यू दे रही हूँ. आज के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढें. एनी क्वेश्चन दैट यू लीव इनटू द यूनिवर्स कम्स बैक 10x इंफॉर्मेशन एनर्जी लेकर आता है आपके पास. आप ये पूछते रहेंगे कि मैं कैसे चाइल्ड बिहेवियर ठीक करूं, तो आप गलत इंक्वायरी पुट करें द यूनिवर्स, इसलिए गलत उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं. इसके दादा कहते हैं कि इधर आओ, मैं इसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करके दूं. मेरे मोहल्ले वाली आंटी ने कहा था कि मिर्चें डाल दो दीवार पे, वो चाटेगी ना जब मिर्चें तो फिर पट्टी खाना छोड़ देगी. नो, आई वांट टू लर्न what does it mean, the behavior. So the question changes, the response changes. अच्छा जी, यहाँ पर भी एक yet another step आपके लिए. What does your child need a parent who can regulate themselves. अब मेरे पास आप आएंगे जब भी, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, खुद को रेगुलेट करें, खुद को हील करें. ये मैं आपको वेबिनार में नहीं बता सकती आपने हील कैसे होना है. मुझे इसके लिए एक डिटेल स्टडी चाहिए, मुझे आपका चाइल्डहुड की कुछ हिस्ट्री चाहिए, मुझे आपके पेरेंटिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज भी सीखने हैं, जानने हैं. देन आई कैन टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रॉमा दैट यू आर कैरिंग विद यू. बट
इट्स नॉट कि आप सिर्फ मेरे पास ही आएंगे तो हील होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड क्विकली, अचानक चिल्लाते हैं, बच्चे को मारते हैं, फिर आप रिग्रेट में जाते हैं, उस वाले सेम लूप में आप फंसे हुए हैं, इट मीन्स आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ट्रॉमा डजेंट मीन समथिंग रियली बिग इन, जो दुनिया के लिए भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए था। नो, ट्रॉमा मीन्स एनीथिंग बिग बिग टू अ चाइल्ड ना। एक बच्चे से कोई लॉलीपॉप भी छीन लेगा तो इजंट इट बिग फॉर हिम और हर? 3 साल के बच्चे के लिए पूरी दुनिया एक लॉलीपॉप भी तो हो सकती है ना। उसकी भी जाहिर की दुनिया ही छोटी है। तो अगर उसको किसी ने इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा दिया, फियर के थ्रू उसको ड्राइव किया, उससे बहुत सारी उसको मतलब a lot of things that happen normally, so उसमें आपको पता है कि trauma has embedded into us, so what whenever we are in the same cycle again, now I am not the child, I am the parent figure, but I end up behaving something bad जो मेरे साथ हुआ था एज अ चाइल्ड। मैं ट्रिगर हो रही हूँ क्योंकि मैं अनहील्ड हूँ, अनरिजॉल्व हूँ। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये वर्ड पसंद भी बहुत है, इसको ध्यान में रखा करें। आप अनरिजॉल्व हैं। अनरिजॉल्व का क्या मतलब है, लफ्ज से क्या समझ आती है? यू डोंट हैव द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यू डोंट हैव आंसर टू अ फ्यू क्वेश्चंस। आपका दिमाग, आप खुद अभी भी कुछ सवालिया निशान उठाए, जिंदगी में मुख्तलिफ मकामात पे खड़ी हैं, वाई? सो आपका काम है रेगुलेट करना, उसके बाद अपने बच्चे से कनेक्ट करना सीखेंगे, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेजेस का भी पता हो, और कनेक्शन की एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेटेजीज भी आती हो। कनेक्ट करते कैसे हैं आप? व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, you should be connected even if child is giving you a hard time, tantrum, आप उसकी टेंट्रम फीड नहीं कर सकते, नहीं करना। टेंट्रम फीड नहीं करना। अगर वो स्क्रीन मांगने के लिए रोता चला जा रहा है, लो 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 लो, ये मेरे पास से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस तरह के एतराजात आपको मिलेंगे, जेंटल पेरेंटिंग में बच्चे खराब कर दिए। दैट्स नॉट जेंटल पेरेंटिंग, दैट्स परमिसिव। यू आर बीइंग टू परमिसिव, हर इजाजत उनकी, उनको हर चीज दे चले जा रहे हैं। बट कनेक्शन इज समथिंग एल्स, यू नो व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू and you can empathize with them at an emotional level, that is connection। और उसके बाद आता है guiding their behavior, until then child will feel safe। so आप परमिसिव हो रहे हैं ना कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बल्कि आप काम एंड कनेक्टेड हैं, दिस इज व्हाट योर चाइल्ड नीड्स। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निक लास्ट टाइम भी बताई थी स्टॉप की वैसे तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा किसी और अंदाज में है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वेन एवर यू आर ट्रिगर्ड। एक एक और पॉइंट मैं चाहती हूँ यहाँ से यहाँ इसको अटेंड करने वाले सिर्फ बातें ना सुने, कुछ चीजें वो याद कर लें कि आपको जब भी यूर वो इमोशनल ऑटो करेक्शन वाला भी, ऑटो पायलट वाला भी एक मॉडल मैंने लास्ट टाइम समझाया था। अ ट्रिगर कम्स एंड योर ऑटो पायलट रिएक्शन कम्स, या यूं कह लें कि बच्चे का बिहेवियर कम्स, यू आर ट्रिगर्ड एंड योर ऑटो पायलट रिएक्शन इज हियर। वहां मैंने दरमियान में पैटर्न इंटरप्ट करवाया था आपसे कि बिहेवियर आया, आप ट्रिगर हुई है तो साथ साथ ही हो जाएगा, समटाइम्स बिहेवियर इज द ट्रिगर। सही हो गया। बट इसके दरमियान में एक पॉइंट आना चाहिए जिसको आप कहते हैं स्टॉप करें, पॉज करें, रुक जाएं, अभी बिहेवियर को ना आने दें, अपने बिहेवियर। कोशिश करें, आप कर सकते हैं। उस दौरान आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी देर की ब्रेक ले सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, जमीन पे खड़े रहे, हिलना नहीं है, पाँव चिपका के रखे, यू नो इस तरह का कुछ कर सकते हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है, यू कैन कम बैक इनटू योर सेंसेस ओवरवेलम से। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने आप से ये 2-3 क्वेश्चंस करें। व्हाट एम आई फीलिंग? एनी टाइम यूर ट्रिगर्ड, आस्क योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फीलिंग को तवज्जो करें ना, दें, ऑटोमेटिकली आपको बच्चों को भी देनी आ जाएगी। वट एम आई फीलिंग, वट माइट माई चाइल्ड बी फीलिंग, उसको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम, वट डज माई चाइल्ड नीड फ्रॉम मी राइट नाउ, अभी इसको मेरे से क्या चाहिए। अच्छा, अगर उसको मेरे से जो चाहिए क्या वो मेरे पास है? हो सकता है मेरे पास खुद ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को मेरे से एम्पैथी चाहिए, लव चाहिए, मेरा अपना बैगेज खाली है, मुझे खुद के लिए एम्पैथी नहीं मिल रही, खुद के लिए लव नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ी सी ब्रेक लूंगी और मैं जाके किसी कमरे में बैठ के अपने आप को थोड़ा सा लव दूंगी, एम्पैथी दूंगी, अच्छे अल्फाज दूंगी, ओके तैयबा, ओके यू आर गुड, यू आर ह्यूमन, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, आई लव माई सेल्फ, आई नो इट्स दिस इज जस्ट अ मोमेंट, ये खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में मेरा बैगेज भर जाएगा और मैं बाहर आके वही वाली मोहब्बत अपने बच्चों को भी दे सकूंगी। एम आई स्टिल क्लियर? कोई चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस या कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं आ रहा है? आई एक्सपेक्ट कि सब बहुत तवज्जो से सुन पा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने नाम से नहीं है। ओके,
सो नाउ, ओके तहरीन। अच्छा जी, अब हैं थोड़े से मजीद बड़े बच्चे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह उनके भी थोड़े से मजीद बड़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सलामती दे सबको। पॉइंट इज, टुडेज पेरेंट्स पेरेंटिंग चैलेंज। आज का चैलेंज, मैंने कहा था ना कि उसी में सब टॉपिक्स में लिखा हुआ था कि आज के वालिदैन क्या करें। उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पजल जो मिसिंग है। शोर ज्यादा है दुनिया में, इन्फ्लुएंस बहुत है, चॉइसेस बहुत हैं, एक्सपोजर बहुत है सोशल मीडिया के थ्रू। और क्या ही कर सकते हैं इस बात का, अदर देन एक्सेप्टिंग कि जो दूसरे मजाहिब और कल्चर्स हैं ना, वेस्टर्न कल्चर्स और नॉन इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है। Why is it so? Just because of that they are in power, they are the ruling powers of the planet Earth. So they are doing it. What they will follow, वही होगा सब कुछ। सही है, जिसको वो फॉलो करेंगे वही हो जाएगा। वो जो ट्रेंड सेट करेंगे उसको सब फॉलो कर लेंगे। सो क्या हो रहा है, पावर्स उनके पास है, मीडिया उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, इम्पैक्ट भी वहीं से आ रहा है। अब होता क्या है कि दुनिया में इतना शोर, इतनी आवाजें हैं, तो आप अब उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस नहीं रहे अपने बच्चे के दिमाग में, बच्चे की दुनिया में। यहाँ पर कुछ गलती, while I should accept and I should salute many millennial parents जिन्होंने इस जनरेशनल ब्रेक साइकिल को ब्रेक करने का फैसला किया है, वो पेरेंटिंग को सीख रहे हैं। एट द सेम टाइम एवरी टाइप ऑफ पीपल आर वेरी मच देयर इन द वर्ल्ड। सो हम ही वो वाली जनरेशन भी हैं जो बहुत ज्यादा बच्चों से डिस्कनेक्टेड हैं, और दीन के साथ खास तौर पे या वैल्यूज के साथ कनेक्ट करने का कोई प्रोएक्टिव प्लान हमारे पास नहीं है। जब कुछ हो जाता है तो फिर मेरे पास आते हैं मदर्स, वो कुछ हो गया होता है, अब क्या, आप क्या करें, मुझे समझ नहीं, टाइम भी गुजार दिया उन्होंने। 13 14 15 साल के जो बच्चे आजकल चल रहे हैं ना, आ, उनकी माएँ बड़ी परेशान है क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। सो बहरहाल अभी मैं यही कहूंगी कि अब क्या हो सकता है, हम ये तो नहीं कहेंगे ना अब तो जो होना था हो गया तो बस छोड़ो भाई, दफा करो, नहीं, दफा नहीं करना। आगे चलते हैं। पजल पॉइंट का कहाँ मिसिंग है, वो रिलेशनशिप। वी टीच वैल्यूज, हम सिखाते भी हैं कोशिश करके, बिहेवियर को भी करेक्ट करते हैं, लेक्चर्स तो हम बहुत देते हैं क्योंकि हमने भी बहुत सुने थे, एंड देन हम रूल्स भी बहुत बनाते हैं, बट वेयर इज द रिलेशनशिप। अब देखिए, छोटे बच्चों के साथ आपका कनेक्शन है, मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करना चाहूंगी, कॉन्सेप्ट इतना चेंज नहीं होता। Connection is where you need, where you can not have much of the verbal communication, so you need to build the connection. बट द डे आपका बच्चा 10 12 साल से बड़ा हो गया है, तो अब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल। सो हियर यू गो, नॉट विद द कनेक्शन बट विद द रिलेशनशिप। नाउ आप बच्चे के साथ एक ताल्लुक बनाएं जिसमें थोड़ा सा बराबरी होती है, टेबल टॉक्स होती हैं, उससे भी पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्यों पसंद है, और क्या इसके जो है ना अल्टीमेट नतीजे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स के कंधों से ये बोझ उतारना चाहती हूँ जो पेरेंट्स ने उठाया ही हुआ है, कि चाहे शायद उन्होंने अपने बच्चों का हिसाब देना है। तो ये आज अभी जो थोड़े से बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे जिन्होंने इंशाल्लाह बड़े हो जाना है, उनकी तरबियत का वक्त आएगा आप पर। आपने तो उनका हिसाब नहीं देना, आपने उनके साथ की हुई बहैसियत पेरेंट कोशिशों का हिसाब देना है। एम आई मेकिंग सेंस? थम्स अप करें, एम आई मेकिंग सेंस? क़यामत वाले दिन अमाल नामा सबका उनके अपने ही हाथ में होगा, लेकिन आपने अपने बच्चों का हिसाब नहीं देना, आप जिम्मेदार नहीं हैं। जज़ाकिल्लाह ज़ैनब, आई सी यू। कल स्टेटस पे लगाइएगा। अम, आपने सिर्फ अपनी कोशिशों का हिसाब देना है। आर यू डूइंग योर बेस्ट? अब आपकी कोशिशों में नंबर वन क्या है, यू आर मॉडलिंग योर सेल्फ एज अ गुड practicing Muslim. Are you? If you are, be content. You एक खाना फिल हो गया, चेक बॉक्स पे लगा दे, टिक लगा दे चेक लिस्ट पे। Are you trying your best? If you are not, try doing your best from today. सही हो गया। सेकेंडली, प्रोएक्टिवली आपने उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा बनाया था, आपकी, इट्स पार्ट ऑफ द मॉडलिंग इटसेल्फ। आपने अपनी घर जिंदगी में तरजीह किसको रखा था, और कितनी दफा उनसे इस टॉपिक पे बात हुई थी।
व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सो दीन आखिरत, इसकी तैयारी कितनी है घर में, इसकी व्हाट इज द रेशो ऑफ द इनपुट कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड। अगर तो बच्चों को बहुत छोटी एज से मोबाइल अनचेक्ड, यू नो अनमॉनिटर्ड, कोई भी वर्ड है, पकड़ाए रखा है, और वो बहुत कुछ देख के बहुत एक्सपोजर बढ़ा चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं, बेस्ट ऑफ लक ही कह सकती हूँ ना। चले कोई बात नहीं, अगर ये भी हो गया तो भी कोई डे आखिरी डे नहीं है, जब तक सांस बाकी है तब तक चांस बाकी है। ये भी मेरा जुमला है। सो आज से शुरू करें, टॉक टू देम, अगर वो बड़े हो गए हैं तो उनको बिठाएं, उनसे बात करें। अ लॉट ऑफ मदर्स जो मुझे कहती हैं मेरी बच्ची, मैं बहुत पर्दादार हूँ, मैं बहुत दीनदार हूँ, हमारी पूरी फैमिली ऐसी है, लेकिन मेरी बेटी ये सब करी है, तो पूछे ना, और फिर उसको बताएं, जिम्मेदारी इसके कंधों पे डालें कि बेटा मैंने आपको बताना था, कह दिया। दिस इज अ वेरी एट द सेम टाइम स्ट्रेंथनिंग एंड एट द सेम टाइम फ्राइटनिंग सेंटेंस स्टेटमेंट, जो मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ कि बेटा मैंने तो अपना काम कर लिया, मुझे लगता है कि आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने आपको बताया, हमने कुरान पढ़ा, आप जानती हैं ना इस बात को, या आप जानते हैं ना इस बात को, नमाज के ऊपर जैसे कि, तो आपको तो पता है ना, तो इतने सालों से मैं आपके साथ एफर्ट करी थी, कोशिश करी थी, आपको पढ़ाया, आपको अपने साथ पढ़ाया, वगैरह 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 वगैरह। Then, so now you are into those people जो मेरे साथ क़यामत वाले दिन बराबर खड़ी होगी, और उसको अपनी पड़ी होगी, मुझे अपनी पड़ी होगी, तो तुमने अल्लाह को जवाब देना, ये नमाज है तुम्हारी डायरेक्टली टू अल्लाह ताला। तुम्हें पता चले ना चले, तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट है, तुम्हें ऐसी माँ मिली है जो तुम्हें रिमाइंड करवाती रहेगी बड़े होने तक भी। ये बोनस पॉइंट है, ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं थी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें देनी थी ना, भी माँ ऐसे मिली होती तो जब तक शऊर आ गया, अब नमाज फर्ज थी। सही हो गया। मदीहा, ओके। चलें, अभी मैंने कुछ ना कुछ टेंट्रम्स वाली बात की थी बेबीज की, मैं आती हूँ कुछ इस पे भी। सो अभी ये बात चल रही है कि जिस जिस इशू का बहुत ज्यादा सामना है, इस टॉपिक में मैं कवर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। 2 मंथ्स वाले के लिए आपके लिए मेरी सीरियस इंस्ट्रक्शंस हैं। जितने ज्यादा घंटे उसको गोद में लेके बैठ सकती हैं बैठे, उसको 2 इयर्स वाले को एंजॉय करें, आपके लिए मेरी ये इंस्ट्रक्शंस हैं। 1 is 2 month and 1.5 एंड 2 इयर्स, 3 है आपके, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल आपके लिए इतने छोटे बच्चों के लिए मैं पहले कई दफा कह चुकी हूँ, आपका 95% टाइम उनके साथ खेलते कूदते और एंजॉय करते गुजरना चाहिए। प्लीज उनकी तरबियत का सोचिए अभी मत, अभी अपना जरूर फोकस करें, अपनी तरबियत करती रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, एंजॉय करें। वो जब बच्चे मजे मजे की हरकतें करते हैं ना, उनके साथ इन्वेस्टेड रहा करें। तो कह के मारते हैं, मतलब बच्चों वाली बोंग, बच्चे मतलब बच्चों वाली बोंगियां मारते हैं ना, दे आर द जेम। वो कभी भी ये दोबारा वक्त नहीं आएगा, बच्चों वाली बोंगियां। अच्छा जी, सवेरे से रिलेशनशिप आगे चलते हैं, फिर मैं आती हूँ आगे। आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू स्टे कनेक्टेड टू इस्लाम। सो वो क्या रहा है, बच्चा 10-12 साल से बड़ा हो रहा है तो उसकी अब आइडेंटिटी बन रही है, वो खाली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू नहीं बन सकती, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो करना क्या है, सबसे पहले ये प्रैक्टिस एंड पे आ रही है। क्या वो जो सब वैल्यूज हैं आप उनको सिखाना चाहते हैं, आपकी उनसे, बच्चे से, और उन वैल्यूज के साथ उस बच्चे की कोई बिलोंगिंग बनाई है आपने? डिड यू डू दिस? डिड यू फिल दिस पजल पीस के बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे बिलोंग एक्चुअली, डू दे नो इट? देन उनका कोई कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब है ऑन रेगुलर बेसिस उनके साथ कनेक्ट करवाया उन वैल्यूज को जिनसे वो बिलोंग करते हैं। फिर एक वक्त आएगा जब बच्चा इज आस्किंग यू फॉर द मीनिंग, क्यों क्वेश्चन जब आता है, 3-3.5 साल की एज में बच्चे की जिंदगी में क्यों का क्वेश्चन आ जाता है। सही है। सम पीपल डिडंट ज्वाइन मी फ्रॉम द स्टार्ट एंड अभी जो क्वेश्चन आया है मोहम्मद पी, आई डोंट नो वेदर यू आर अ फादर और मदर, मुझे तो मदर ही लगी है क्वेश्चन से। सो यही एग्जैक्टली मैंने बताया है कि इमोशनल ट्रैप में हम ये सब करते हैं। तो अभी मैं आ रही हूँ आगे थोड़ा सा। सो अभी यह है कि वो जो 3-4 इयर्स का बच्चा, दे वॉन्ट मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, वो दे आर आस्किंग, दे आर सर्चिंग फॉर द मीनिंग। सो आप उनको मीनिंग दें, बताएं, उनके साथ एक सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग लेवल की अटैच करना शुरू कर दें 4-5 साल। समवन्स वीडियो इज ऑन एंड आई थिंक विदाउट देम नोइंग कि वो ऑन है, दैट्स Xiaomi। इसको तो बेहतर है कि फिर आप ऑफ ही कर दें, क्योंकि दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस विल बी अपलोडेड ऑन YouTube। मीनिंग यहाँ तक बात आ जाएगी तो चीज प्रैक्टिस में भी आ जाएगी। सही है।
अब ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, क्या आप इसको सेल्फ चेक कर सकते हैं 10-12 साल से बड़े बच्चों की माएँ? कैन माई चाइल्ड कम टू मी विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट इस्लाम विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ माई रिएक्शन? इस्लाम के मुतालिक आखिर जैसे मेरी एक बेटी ने बहुत साल पहले कहा था, अपने ध्यान में बैठी हुई थी, और अल्लाह ताला माइंड क्यों कर जाते हैं हर बात को? जिनके अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है ना, हम उनको ये कहते हैं आप ऐसे ना करें, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो बच्ची वाज लाइक अल्लाह ताला माइंड क्यों कर जाते हैं हर बात को? और मैं उस वक्त उनको ये कहती कि अ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात ये आपने कैसे अल्फाज कह दिए। अ, थोड़ा सा बच्चा रेजिस्ट कर जाता, और ऐसे जो हमारे स्पिरिचुअली डिवाइन टॉपिक्स हैं उनके लिए हम थोड़े होते भी वल्नरेबल है, हम अचानक ही बच्चे को कह देते हैं ओ चुप, ये क्या कह दिया। इसकी बजाय एनीथिंग दैट बच्चा कम्स अप विद, उसको वेलकम करें। यहाँ पे है, इन पेरेंट्स के, इन बच्चों के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लेक्चरिंग कम से कम करें। 12 साल के बाद बच्चे के लिए आपके अल्फाज की मिकदार उससे पहले इस्तेमाल किए गए अल्फाज से 1/3 हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस करें, प्रिसीजन प्रैक्टिस करें। प्रिसीजन, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है जुमले। यही बता रही हूँ मैं, उम्मे मोहम्मद। कम जुमले बोलें, खुद पढ़ें। कुछ नमाजें बच्चे, मेरे बच्चों ने अपनी कज़ा भी की, मेरी आंखों के सामने हो गई, फिर भी मैंने उनको ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी। दे केम अप विद दिस, के वो उदास हुए, अपसेट हुए। रेजिस्टिंग वे में इंस्ट्रक्शंस ना दें, नमाज फिर तुम छोड़ दोगे, कज़ा कर दोगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें ना करें। तो लेक्चर्स बहुत कम कर दें। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद आस्क बिफोर एज्यूमिंग, बहुत सारे वालदेन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे अब मेरा बेटा है, जब वो एक दिन नमाज नहीं पढ़ा था तो अपने ध्यान में था, वो ना सारे क्रू को इकट्ठा कर रहा था, अपने कजन्स को। और मेरे वालिद ने समझा कि मैंने इसको नमाज पढ़ने भेजा है, उस बच्चे के नाना ने, तो ये नमाज तो नहीं पढ़ा, ये तो खिसक गया है। अब वो मेरा बेटे का ऐसा अंदाज है ही नहीं, नेचुरली उसने ये अडॉप्ट नहीं किया। उसको जो कहो तो वो कहता है चलो, कोई और कहे तो क्या मान लेता है, कभी मुझसे टेंट्रम कर लेता होगा। एंड ही वाज एक्चुअली कलेक्टिंग द क्रू, कि आओ हम मिल के नमाज पढ़ें। वो किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, उस दौरान मेरे वालिद आए, विदाउट गेटिंग द सिचुएशन क्या हो रही है, उसको डांटना शुरू कर दिया। तो मैंने नमाज के लिए भेजा, तुम यहाँ आके खेलने लगे हो। इसकी बजाय हम पूछ भी सकते थे दोबारा क्वेश्चन। इट्स नॉट कि अब्बू को पता ही नहीं था, इसलिए अब्बू को लगा बच्चा है वो। ये जो लगा है ना, ये एज्यूमिंग होता है। इसको लगाया ना करें ज्यादा, बच्चे से पूछ लें पहले। So I always happen to make myself fool in front of my kids, if even if they are doing something purposely। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको ध्यान नहीं रहा शायद, आपने ये करना था, नमाज हो गई आपकी? तो अगर बच्चा मुझे कहता है कि गलती से, छोटा वाला बेटा, गलती से मेरी नमाज कज़ा हो गई, हालांकि मुझे पता है वो मोबाइल में लगा हुआ था, मैंने उसको 3 दफा इंस्ट्रक्शन दी, उसका स्क्रीन टाइम भी चल रहा था, एंड देन उसकी नमाज कज़ा होगी। नाउ आई एम नॉट स्कोल्डिंग हिम, मैं इसको सिर्फ ये कह रही हूँ कि बेटा आपकी नमाज है ना, आपने ही अल्लाह को जवाब देना है, आप खेल में रहे तो अब आप देख लो, कज़ा कर लो, दिल से इस्तगफार कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जा रही है, तो दे आर टेकिंग द चार्ज। अच्छा जी, वैल्यू के पीछे वाई एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। क्यों है ये जिंदगी ऐसी, क्यों ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, क्यों ऐसी वाली जुबान बोलनी है, क्यों 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 क्यों। अपने वाइस क्लियर करें, सो दैट बच्चों को दे सकें। आजकल के बच्चों के वाइस ज्यादा क्रिटिकल है। कनेक्शन को तोड़े बगैर बाउंड्रीज बनानी है, कि मुझे पता है आपके लिए बाउंड्री मुश्किल है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब मेरा बच्चा कहता है नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो आई अग्री, दिल नहीं चाहता। कभी कभी दिल नहीं चाहता, बी ऑनेस्ट, मेरा भी नहीं चाहता कभी कभी। बच्चों का तो ज्यादा ही नहीं चाहेगा ना, वो तो इतने इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं। एंड आई टेल देम कि बेटा आई नो दिल नहीं चाहता, बट दिस इज द प्लेस जहाँ दिल की बात नहीं करनी, दिमाग की करनी है। थोड़ी देर मुश्किल होगी, लेकिन नमाज पढ़ लो, फिर आप बैक टू द थिंग। सो कनेक्शन ब्रेक ना हो, उनको ये कहें कि हाँ ठीक है, सही है, यू आर राइट, बट यू नीड टू डू इट। सो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस आपके घर में होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने पार्ट पता है क्यों ऐड किया था? while I was just almost for 35 to 40 minutes talking about the children of around 5, 6, 7 years, और उनके मसलों के मतलब ही बोल रही थी, और ज्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। ये आइडेंटिटी शिफ्ट वाला, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं टीन एजर्स के लिए, इन माओ के लिए बहुत कुछ ऐड नहीं करती। बट आई एम सरप्राइज कि वो सवाल चैट बॉक्स में आ रहे हैं जिनका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ, डिड आई नॉट?
फिर भी हम देखते हैं। अभी सिर्फ ये था कि जो इस वेबिनार का लास्ट पार्ट है वो ये था कि मैंने आपसे कहा था थोड़ी ओरिएंटेशन करूंगी अबाउट माय अपकमिंग आईसीपीसी बैच 2, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन्स हो चुके हुए हैं। 5 अगस्त तक उसका उसकी जो प्रमोशन चल रही थी उसके उसके मुताबिक कुछ लोगों ने इस प्रमोशन को अवेल कर लिया। सो 10 में से 2 तो कंप्लीट हैं, बाकी 3 अभी अंडर डिस्कशन है, जिन्होंने मुझसे डिस्कशन शुरू की हुई है। बट ऑफ कोर्स अब उनके लिए मैंने इसीलिए हेल्ड कर दी थी मजीद डिस्कशन, क्योंकि मैं इस वेबिनार में को अटेंड करने वाली माओं को भी उस उसी सेम जो मैंने दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज वाला, उसके साथ अलाउ करना चाह रही थी विद इन द 24 आवर्स। वो है क्या, वो यही है, आज मैंने आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको मिली है कि नहीं मिली है? वो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है आपकी जिंदगी में इसको अटेंड करके? कुछ सीखने को मिला है? अगर तो यस, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज नॉलेज। नॉलेज डजेंट एक्चुअली, परसेंटेज देख लें, दुनिया में आज तक नॉलेज ने कितना कुछ चेंज किया। नॉलेज एंड प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन टू टीच, फैसिलिटेटर एंड कोच और मेंटोर इज अनदर थिंग। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अंडरस्टैंड करेंगे अपने बच्चे को, आप खुद को, जो आपके पैटर्न्स हील होंगे प्रॉपर, वो पहले 3 जो सेशंस हैं उसका पूरा मॉड्यूल है हीलिंग द मदर। आप किसी भी एज ग्रुप की है तो इस मॉड्यूल के लिए तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट बाकी का पूरा मॉड्यूल 0 to 12 ईयर्स के बच्चों के मुतालिक होगा। पूरा पूरा सेशन, दोनों मॉड्यूल्स, ब्रेन डेवलपमेंट एंड देन पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज। सो पहले मॉड्यूल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको चाइल्डहुड में, आपके चाइल्डहुड में लेके जाऊंगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट्स आपको सिखाऊंगी, कॉज एंड इफेक्ट स्टेट के मुताबिक आपको पावरफुल स्टेट में रहने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी कि दिस इज योर पावरफुल स्टेट। अजान मुझे यहाँ सुनाई नहीं देती इस रूम में कभी भी। अब तो मैं किसको सुनने के लिए खामोश हो जाऊंगी? आई एम जस्ट समिंग इट अप थोड़ी देर में। सही है। सो लास्ट इज फर्स्ट मॉड्यूल हीलिंग द पेरेंट। मैं खोल ही देती हूँ वो स्लाइड। हीलिंग द मदर। आपको अपने ट्रिगर समझ आने लग जाएंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं, मेरा कौन सा पार्ट है जो दुख गया है, मेरे इमोशनल पैटर्न्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। देन आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग एंड इनर रिस्पॉन्सेज जो आप दे देते हैं ऑटो पायलट रिएक्शन, वो कहाँ से आ रहे हैं। देन इज ब्रेन बिहेवियर, जो बच्चे बिफोर बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को देखने सीखने एड्रेस करने से पहले यू नीड टू लर्न उसके बिहेवियर में है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज कहाँ है, और इस स्टेज का बच्चा क्या करता है, इस स्टेज का बच्चा क्या करता है, इस स्टेज का बच्चा क्या करता है। इस पे मैं 0 to 12 आपको टीच करूंगी। देन नो पेरेंटिंग कोर्स इज कंप्लीट विदाउट दिस पार्ट। ये काफी कस्टमाइज्ड मॉड्यूल होता है जिसमें माएँ मेरे पास अपने मसले लेके आती हैं, क्वेश्चंस लेके आती हैं, और मैं उनको जवाब देती हूँ। ज्यादातर ऐसे चलता है। 3 इसके भी होंगे। ब्रेन डेवलपमेंट वाले के सिर्फ 2 क्लासेस हैं, बाकी पहले वाले की भी 3 हैं और लास्ट वाले की भी 3 है। सही है। और आपको मिलेगा क्या, जाहिर है आप अभी रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिएक्टिंग टू रिस्पॉन्सिंग रिस्पॉन्डिंग ले आऊंगी। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्रॉम कंट्रोल टू कनेक्शन एंड गाइडेंस। एंड इफ यू आर इन एग्जॉस्शन मोड ऑल द टाइम, so you will experience inner calm. That is why its name is ICPC, इनर काम पेरेंटिंग सर्कल। रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, वर्क बुक्स मिलेंगी, बुक मिलेगी जिसको मैं डिजाइन कर चुकी हूँ, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग दिस दीज 8 वीक्स। हर मदर का मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन भी इसी पैकेज में फ्री है, टाइमलाइन थेरेपी के लिए जो मेरे पास आएंगे फॉर द हीलिंग पर्पज, कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिजॉल्व करने वाली एक एक्टिविटी है टाइमलाइन थेरेपी। तो उसको भी अपना मिनिमम लेवल की चार्जिंग के साथ विद सम एडिशनल चार्जेस मैं मदर्स को वो भी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि आईसीपीसी जो है ना, इसके मेंबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे बहुत लाडले लगते हैं। तो बैच 1 में भी ऐसा ही हुआ था और बैच 2 में भी बहुत कुछ ऐसा होगा, बट अ फ्यू थिंग्स विद द डिफरेंस ऑफ फ्यू थिंग्स। एंड देन अभी मैं ऐड ऑन कर दूं कि जो इसकी डिस्काउंट था, 20,000 इसकी फी है। ऑफ कोर्स मुझे पता ही है कुछ मदर्स के लिए हाई टिकट है, बट रिजल्ट इसके उससे कई गुना ज्यादा हैं। आप माओ से पूछ लें जिनका फीडबैक मैंने आपसे शेयर किया है, दे डोंट रिग्रेट पेइंग दिस मच फी। दे से कि बड़ा मजा आया, एंड दे आर नॉट, दे हैव द एक्सेस टू बैच 2 फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इस बैच 2 के पेरेंट्स को एक्सेस होगी टू बैच 3 फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है, सो दैट आप रिवाइज भी कर सकें ये सब चीजें। तो अब ये सारे इसके पर्क्स हैं। 16,000 ही फी में मजीद इसका आज और कल
कल शाम तक के लिए मैं अनाउंस कर रही हूँ कि जो आज अभी मुझसे रब्ता करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कल शाम 7 बजे तक, विद इन 24 आवर्स। सो दिस इज द सेम फी विद 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चंस करने हो, पहले भी मैंने कहा था, कुछ लोगों ने मेरे से ऑडियो कॉल बुक भी कराई और बात भी की, बहुत से सवालों के उन्हें जवाब भी मिले, और आप भी करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। सो अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे चैट बॉक्स में, वो उनको मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लेती हूँ। कोई कह रहा है कि बच्चों को नमाज पे कैसे लगाऊं, और एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि क्या करता है वो बच्चा। लेट मी सी अगेन। कभी बात सुनता कभी नहीं सुनता, जब मैं चीखूं या मारूं तो फिर मैं बुरा महसूस करती हूँ। दिस इज द एग्जैक्टली द सेम जिस एक स्लाइड पे मैंने कम से कम 15-20 मिनट लगाए हैं, कि इट्स अबाउट योर इमोशंस। कभी सुनता है कभी नहीं सुनता इज अ बिहेवियर दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी टू से। इंपॉर्टेंट इज व्हाई डज द चाइल्ड डू इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी कौन सी सिचुएशन है। वो भी इमोशनली ओवरवेलम हो सकता है, अगर आप हो सकती हैं तो। वो तो ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके पास रेगुलेशन टूल्स आपसे कम है। ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर आप दोनों की इमोशनल लेवल पे जंग शुरू हो गई है तो अब किसको जंग जीतना चाहिए। मदीहा, किस एज का बच्चा है आपका? बात नहीं सुनता, आप उसे क्या बात सुनवाना चाहती हैं? और जो कहूँ उल्टा ही करता है। मेरा ख्याल है उसको लीड करना चाहिए अभी लाइफ को। वो जो जैसे कर रहा है उसके मुताबिक अपने एनवायरनमेंट को सेफ जरूर करें, उसके लिए भी और सबके लिए भी। उसको इंस्ट्रक्शंस मत दें, ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा हावी ना हो। अगर आपके घर का एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, रूटीन एंड सिस्टम्स हैं, तो ये गुड टू गो विदाउट आस्किंग हिम सो मच टू डू फॉर यू। ओबीडियंस इज मैनिपुलेटिव। आई अंडरस्टैंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। जब एक माँ हो और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहती है और उसके 2 या 3 बच्चे हों या एक बच्चा हो, उसे समझ भी ना आए। तो अगर वैसे भी आप अकेली हैं तो ये तो समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द मदर्स जो कहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में, हमें और भी तो काम होते हैं, बच्चा को ही देखते रहें। तो आप अगर अकेली होती हैं तो आप बच्चे को देखती रहें। उसको बहुत कुछ ना कहें, उसके साथ रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंफर्टेबल नरम लहजा अख्तियार करें। ठीक है। सो इसीलिए मैं नमाज की तरफ आ जाती हूँ कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया आपको। बच्चे से कनेक्शन और रिलेशनशिप पहले बनाएं। इमोशनल ट्रैप अपना खुद डील करें, आप ट्रैप ना इमोशंस में। उसको उसके साथ डील करें, उसको समझें, उससे खुद अलग से निकलने की कोशिश करें। वीआईपी प्रोटोकॉल दें खुद को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को नाम दें। तो आपके लिए वहां से थोड़ा सा निकलना। और आपके साथ ऐसा नहीं होता क्या कि जब आप बहुत बेसुकून थे, बहुत इमोशनली ओवरवेल्म थे, आपने ये सब किया, लेकिन 15 मिनट बाद आप जब रिलैक्स हो गए तो अब आप रिग्रेट करें काश मैंने ना किया होता, क्योंकि आपके इमोशन सेटल हो गए ना। तो बस उसके सेटल होने का इंतजार कर लें। ये दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलेटेड मदर। क्या रेगुलेटेड मदर्स को गुस्सा नहीं आता? क्या वो मशीनें बन जाती हैं? क्या वो स्ट्रेस में नहीं जाती हैं? क्या उन्हें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है? सब होता है। बट इमोशंस के दौरान, हाई इमोशंस के दौरान लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये बड़े इंसान के दिमाग की भी नहीं हो सकती। एमिगडाला एक्टिव है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स इनएक्टिव है। इस वजह से उसको थोड़ा सा वक्त दें, फिर आपकी तो वो फिर भी एक्टिव हो जाएगी, बच्चे की वो फिर भी नहीं होगी क्योंकि उसकी डेवलप्ड ही नहीं है। 5 साल की एज तक तो उसकी पहली लेयर बनती है, 25 साल तक वो डेवलप होती रहती है, ब्रेन डेवलपमेंट। और हम चाहते हैं कि तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं हूं या ना हूं। बच्चा पुरसुकून नहीं होगा, वो ओवरवेल्म्ड रहेगा। वो ये सब कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करता रहेगा जो आपको ट्रिगर करे। अपने ट्रिगर्स को डील करें, बच्चे को समझने की कोशिश करें। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो वही करेगा। बच्चा उछलना चाहता है, बच्चा चीजें फेंकना चाहता है, पानी गिराना चाहता है। बच्चे का दिल चाहता है पानी की कुलियां करे जगह जगह क्योंकि मजा आता है। और आप कह रहे हैं कि तुम्हें तमीज ही नहीं है, कितने गंदे बच्चे हो, इन हाइजीनिक माहौल बना दिया है, मेरा काम बढ़ा दिया है, मैं हर वक्त यही करती रहूं। और क्या करना है आपने? अगर तो आप बहुत कुछ करती हैं, आई अंडरस्टैंड, अगर वर्किंग मदर्स हैं वगैरह वगैरह। यार बच्चे आर द वीआईपी। जब तक 5 साल का आप उनका पूरा एनवायरमेंट है, फिर आप उनको करेक्शन करते रहेंगे तो ये क्या हो गया भाई? उसको समझें, उसको थोड़ा सा ज्यादा करने दे जो वो कर रहा है। आपको पता है जो बच्चा टांगे मारता है लेटा हुआ किसी को, वो भी उसके नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन नीड होती है, रेगुलेशन के लिए।
और हम उसकी टांगे पकड़, ये बुरी बात है, गंदी बात है, गंदे बच्चों वाला काम है, क्या कर रहे हैं आप? उसका गिल्ट ऐसा इनबिल्ट कर रहे हैं उसके अंदर कि मैं गंदा बच्चा हूँ। लेबल्स मत करें, नसीहतें मत करें। 5 साल तक के बच्चों को मैं 1000 दफा कह चुकी हूँ, अभी भी कहूंगी, तरबियत की जिम्मेदारी साइड पर रख दें। अभी नहीं करनी तरबियत। बी वॉट यू वॉन्ट देम टू बी इन फ्यूचर, बट डोंट टीच। इंजॉय, गले से लगाएं, चूमें, बच्चों वाले काम करें, उनके साथ उछलें कूदें खेलें, उनकी तोतली जुबान एंजॉय करें। यार बड़े हो जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे ऐसे। उनको अभी जितना एंजॉय करना है कर